डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स तो अगर हम अल्कीन्स को डिफाइन करेंगे, इनफैक्ट अल्कीन्स और एसाइक्लिक unsaturated hydrocarbons. Alkenes are acyclic unsaturated hydrocarbons containing one carbon-carbon double bond. तो ऐसे डिफाइन करेंगे alkenes और acyclic means open chain. Alkenes are acyclic unsaturated hydrocarbons containing one carbon double bond. तो यह है डेफिनेशन अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स क्या है? ये एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन, जिनकी ओपन चेन जो वहाँ पे कार्बन एटम्स होंगे वो ओपन चेन हालत में होंगे। अल्कीन्स आर एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनफैक्ट दे आर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन कार्बन डबल बॉन्ड। और इन हाइड्रोकार्बन्स के पास एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लाइक दिस, they are hydrocarbons, they are acyclic containing one carbon double bond, so this is an example of an alkene. और जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, then they are also unsaturated. That is why we define these as unsaturated acyclic hydrocarbons containing one carbon double bond. ईथीन। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लिखेंगे इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसकी, और एक कार्बन डबल बॉन्ड है। देन इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन अल्कीन एंड इट इज़ कॉल्ड प्रोपीन। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, it is hexene. So it is first of all it is hydrocarbon, it is acyclic, it is hydrocarbon acyclic containing one carbon double bond, so it is also an example of an alkene and it is called hexene. Whenever the hydrocarbon contains the double bond or triple bond, then they are also unsaturated. Since it contains the double bond, so it is also unsaturated. That is why the definition for alkenes is alkenes are acyclic unsaturated hydrocarbons containing one carbon double bond. Now these alkenes are also called olefins. इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, alkenes are also called olefins. Because this olefin is a Greek word which means oil forming. In fact, it's a Greek word and it is derived from the word olefant.
olifant and which means oil farming. So alkenes are also called olefins. Why they are called olefins? Because they are oil farming compounds. ये देखा गया है जो इनके लवर मेंबर्स है लाइक ईथीन है, प्रोपीन है, अगर वो react करेंगे with halogens, especially with chlorine and bromine, they form oily compounds. That is why they are also called olefins. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा alkenes are also called olefins because lower members of alkenes like ethene, propene, etc. form oily compounds with halogens like chlorine and bromine. और ये था रीज़न कि हम इन अल्कीन्स को क्यों ओलिफिन्स भी कहते हैं. तो अब एक और बात है कि यहाँ पे अब हम अल्कीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम जो सिंपलेस्ट अल्कीन है हमारा दैट इज़ ईथीन, हम उसी की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे यहाँ पे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन हम एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे दैट इज ईथीन. तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे ईथीन की जो अगर हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो अगर आप यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ले लेंगे इट इज़ 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. तो यहाँ पे क्या होता है वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s goes to this 2pz, therefore that becomes when the electron goes from 2s to 2pz, that becomes the excited state of this carbon. So in excited state the electronic configuration of carbon would be 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. Each of the carbon in ethene that undergoes sp2 hybridization होगी, इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी भी. तो they undergo sp2 hybridization तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 3. they will lie around the central atom is here carbon and here carbon in such a way that there are minimum repulsions and maximum stability. That is, if this point represents the carbon, it would have now 3 hybrid orbitals because it has sp2 hybridization. I am showing one of the hybrid orbital like this. It is one of the hybrid orbital, and now this is second one and this third one. In fact, they would be triangular planar. They would be in triangular planar form.
नाउ सिंस जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास है एक एक, इसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे, और हर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होने के लिए उसको दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आप समझिए कि ये लेफ्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में दिखा रहा हूँ, इसी तरह से राइट वाले की, नो इट इज़ राइट साइड कार्बन, इसमें भी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले इसके साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाएगा, और अब इसके भी दो हैं, इट इज़ नाउ सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस थर्ड वन, दिस टू कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ओवरलैप। अब इसके पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाते हैं जिन्हें जो अभी अनस्टेबल हैं, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से हाइड्रोजन का वननेस एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन जो है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन वननेस, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, और वननेस एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके इसके साथ बॉन्ड बना देता है। इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन का, तो इसके साथ अब एक और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये है अब CHH और ये है CHH, इन्होंने एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान बनाया है। अभी अगर आप थोड़ा देखेंगे, अभी जो 2pZ है इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है। ये एक कार्बन के पास भी है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pZ, और इसके पास भी, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pZ होता है, ये जिस प्लेन में ये लाई करते हैं, दिस कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, उसके परपेंडिकुलर होते हैं, जो इस तरह से वो इस तरह से होंगे। क्योंकि हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इनको इस तरह से। इनफैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing these three hybrid orbitals। इसका एक 2pZ और इसका 2pZ, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है भी, अगर आप यहाँ भी देखेंगे 2pZ, और ये क्या, ये आपस में साइड वेज ओवरलैप करेंगे, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले लोब में रहने की पॉसिबिलिटी है, उतनी ही पॉसिबिलिटी इसको लोअर लोब में भी रहने की पॉसिबिलिटी है। दैट इज़ वाई वी शो द ओवरलैप फ्रॉम द टॉप साइड एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम साइड। सो इन फैक्ट दीज टू ओवरलैप्स मेक ओनली वन बॉन्ड। अब हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो ये साइड वेज ओवरलैप इन्होंने किया 2pZ ऑर्बिटल्स ने, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया दैट इज़ अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बना जहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप हुई, और हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना और पाई बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान, और इन कार्बन एटम्स ने दो सिग्मा बॉन्ड दो हाइड्रोजन के साथ भी बनाए, इसने दो, क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने इनके साथ भी हेड ऑन ओवरलैप किया है इसने। तो अगर हम इथीन में देखेंगे टोटल यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और एक पाई बॉन्ड। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट्स लाइक दिस, सी इट इज सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ पाई बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से ये और इट्स इथीन। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है दैट इज़ ड्यू टू sp2 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 ओवरलैप।
क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन हैज़ ओवरलैप्ड विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन। और जो ये बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और ये है sp2s ओवरलैप के ज़रिए ये बॉन्ड बना है। तो ये था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ईथीन। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एक्चुअली वहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड जो है इट इज़ वीक बॉन्ड, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली बाउंड है। जिस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बंद होंगे उसके हिसाब से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस तरह से बंद नहीं है। तो ये वीकली लूजली बाउंड होने की वजह से अगर कोई भी वहाँ से रेजेंट आएगा उसको ये इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये अल्कीन जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज़ कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ कोई आएगी वहाँ से वो अटैक कर सकता है इसको, बिकॉज इट हैज़ लूजली बाउंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर तो इसका मतलब है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ को या कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ इसको अटैक कर सकता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ इसको अटैक कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स अल्कीन्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे विल गेट दीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स या सिंपली इलेक्ट्रोफाइल्स अल्कीन्स के साथ रिएक्ट या रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। तो अब इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसी के साथ, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। नाउ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स। general preparations of alkenes. There are so many methods by which we prepare the alkenes. तो इनमें से एक मेथड है दैट इज बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स। एक मेथड है दैट इज partial reduction of alkynes, partial reduction of alkynes। हम क्या करते हैं कि अगर हम अल्काइन्स लाएंगे और उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो हमें अल्कीन्स मिल सकते हैं प्रोवाइडेड कि हम ये रिडक्शन जो है अल्काइन्स की ये अंडर कंट्रोल्ड मैनर में करें। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन दिखाऊंगा। अगर हम एक अल्काइन ले लेंगे दैट इज ब्यूटोआइन, ब्यूटोआइन, which is like this. It is ब्यूटोआइन। तो हम इसको अल्कीन में तब्दील कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट्स। हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, इसको हाइड्रोजन ऐड करना है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स। तो एक तरीका है कि हम
यूज़ करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे अल्कीन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से। मगर अल्कीन जो है, अल्कीन्स चूँकि हमें पता है कि अल्कीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे जो अल्कीन्स मिलेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन में अब दो चांसेस हैं। यहाँ पे जो अल्कीन मिल सकता है ये हमें सिस फॉर्म में भी मिल सकता है और ट्रांस फॉर्म में। और अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं बाय सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो वहाँ पे जो अल्कीन मिलता है हमें दैट इज़ ट्रांस। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे लाइक दिस CH3, इट इज़ CH3, यहाँ पे H लाइक दिस। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजनेशन आपने की, क्योंकि इस कार्बन को एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन को, ये तो हाइड्रोजनेशन, इट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, देन वी विल गेट ट्रांस अल्कीन्स, और इन फैक्ट इट इज़ कॉल्ड ट्रांस ब्यूटूइन। एक और तरीका है, अगर आप इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इस ब्यूटूआइन की, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, by using palladium as a catalyst, supported over calcium carbonate, and it is partially poisoned by addition of PbCO3 और सल्फर। इसको पॉइजन किया जाता है by using this sulfur, it is partially poisoned because जब आप इसके हाइड्रोजनेशन करोगे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो अल्कीन मिलेगा वो अल्कीन की फर्दर रिडक्शन होकर वो अल्केन में तब्दील होगा। क्योंकि हमें अल्कीन ही बनाना है तो हमें पूरी रिडक्शन नहीं करनी है, हमें पार्शल रिडक्शन करनी है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे एक कैटालिटिक पॉइजन भी इस्तेमाल करते हैं लाइक सल्फ़र, PbCO3 भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्विनोलिन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये रिडक्शन जो है अल्कीन पर ही स्टॉप होती है। तो मतलब इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से ये रिडक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन in the presence of palladium supported over calcium carbonate and is poisoned by, and is in fact जो इसको पार्शली जो पॉइजन किया जाता है दैट इज़ बाय एडिंग दिस सल्फर, तो वहाँ पे जो हमें अल्कीन मिलता है दैट इज़ सिस अल्कीन लाइक दिस। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इट्स लाइक दिस। इट इज़ सिस ब्यूटूइन। तो ये थी पार्शल रिडक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, इसको और हाइड्रोजन मिल सकता है, तो हमें अल्केन्स मिल जाएंगे। क्योंकि हमें अल्कीन्स बनाने हैं तो दैट इज़ वाई वी मेक ए पार्शल रिडक्शन। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे जो हम कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स करते हैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडिनम supported over calcium carbonate, and it is partially poisoned by sulfur or quinoline, it gives cis alkene and it gives cis alkene। जो हम ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं अल्काइन्स की by using palladium as catalyst supported over calcium carbonate and is partially poisoned by sulfur। It is also called Lendler's catalyst, it is called Lendler's catalyst। और अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं इस तरह से,
अगर आप अल्काइन्स को रिड्यूस करते हैं विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया देन इट्स कॉल्ड बर्च रिडक्शन, इट इज़ कॉल्ड बर्च रिडक्शन। तो इसको आप याद रखेंगे, इट इज़ इन फैक्ट इट्स कॉल्ड बर्च रिडक्शन। अगर आप इस तरह से रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, आप रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग प्लेटिनम सपोर्ट टूवर्ड कैल्शियम कार्बोनेट partially poisoned by sulfur, then this catalyst is called, it is called Landler's catalyst। तो Landler's catalyst हमें predominantly क्या देता है, सिस अल्कीन ही हमें इससे मिलता है। इट इज़ इन फैक्ट Landler's catalyst, Landler catalyst याद रखिए यहाँ पे। तो ये था वन ऑफ द मेथड कैसे हम अल्कीन्स बनाते हैं बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स। तो एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स टू अल्कीन्स ऑकर फास्टर दैन दैट ऑफ अल्कीन्स टू अल्केन्स। अगर आप अल्कीन्स को अल्केन्स में रिडक्शन करना चाहोगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो वो स्लो होती है कंपेयर टू कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स टू अल्कीन्स। मतलब यहाँ पे मैं अगर आप अल्कीन्स को अल्केन्स में तब्दील करना चाहोगे और अल्काइन्स को अल्कीन्स में तब्दील करना चाहोगे, दोनों जगह हम कैटालिटिक रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और यहाँ पर भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अल्कीन का अल्केन में तब्दील होना इट इज़ स्लो, व्हाइल एज अल्काइन्स को अल्कीन में तब्दील करना बाय दिस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इट इज़ फास्ट। ये आप याद रखेंगे, मतलब अल्काइन्स को अल्कीन में हम वेरी फास्ट तब्दील कर सकते हैं कंपेयर टू अल्कीन्स इनटू अल्केन्स। तो एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम ये अल्कीन्स बनाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। एक और मेथड है दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, from alkyl halides। अल्काइल हैलाइड्स, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम इथॉक्साइड, या हम कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, तो जिससे हमें अल्कीन्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन एक दिखाऊंगा लाइक दिस, इट इज़ CH3 CH2I। तो हम इसको हीट करते हैं either by using the strong base such as sodium ethoxide or concentrated aqueous concentrated alcoholic solution. It is not aqueous, it is alcoholic solution of potassium hydroxide. We can also use concentrated alcoholic solution of KOH potassium hydroxide, या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ अल्कोहलिक। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आई निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ, मैं यहाँ पे
हियर इट इज़ CH3, यहाँ पे मैं CH2 लिखूँगा इस तरह से, एक H में इस तरह से दिखाऊँगा। तो व्हाट हैपन्स हियर, दिस I कम्स आउट एज I नेगेटिव। तो जब ये I नेगेटिव निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस जानिब आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा I, और वो I K के साथ मिलकर KI बनाएंगे, और KI बनाएगा, और H इस OH के साथ वाटर, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट इज़ आयोडोइथेन, it is iodoethane, and it is simply ethene. It is ethene. It is ethene. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे, आयोडो ईथेन को ईथीन में तब्दील करने के लिए आपने इससे क्या निकाला, हाइड्रोजन और आयोडीन को, एंड इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डि मीन्स रिमूव करना, हाइड्रोजन हेलोजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ a molecule of hydrogen halide, the process of removal of hydrogen halide from a haloalkane to form an alkene is called dehydrohalogenation। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, dehydrohalogenation। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, द प्रोसेस of removal of a molecule the process of removal of a molecule of a hydrogen halide like HCl, HBr, HA from a haloalkane to form an alkene. Form an alkene is called dehydrohalogenation. That is called dehydrohalogenation. तो अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे, इनफैक्ट यहाँ से क्या निकला, हमें हाइड्रोजन और आयोडीन यहाँ से निकला है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हम ये कहेंगे जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन को यहाँ पे है दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा इस वजह से हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो किस हेलो अल्केन के किस कार्बन से निकला है। अगर आप आयोडीन के ले लोगे, आयोडीन जिस कार्बन के साथ अटैच है इट इज़ अल्फ़ा कार्बन, तो उसके बाद जो कार्बन है दैट इज़ बीटा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन्स जो होते हैं दे आर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, और इसी तरह से बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो निकला है बीटा हाइड्रोजन। तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो किस कार्बन पे है, उसी हिसाब से इस एलिमिनेशन को नाम दिया गया है। क्योंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकला है, या हम ये कहेंगे बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है, तो इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये था किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड्स से भी
अल्कीन्स बनाते हैं। अगर हम इस तरह से ये रिएक्शन लिखेंगे, इसकी एक और एग्जांपल दे दिए हम। इट इज़ लाइक दिस CH3 CH, it is CH2Cl, ये इस तरह से, और इसको फिर कंसनट्रेटेड KOH अल्कोहलिक ऑन हीटिंग, ये तो है अल्फ़ा एंड इट इज़ बीटा। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एक ही है, तो इसी को निकलना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, जो डबल बॉन्ड बनेगा ये इस तरह से, ये निकलेगा इस तरह से, ये आएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3CH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। तो ये था क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन, और ये हमें मिल जाएगा प्रोपीन, और Cl एज KCl, और वाटर हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अगर हम अब इस तरह का हेलो अल्केन ले लेंगे, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। अगर हम इस तरह का ले लेंगे आप CH3 CH2 CH3 like this CH3, that it is, यहाँ पे मैं Br रख रहा हूँ, मैं इस साइड में Br रख रहा हूँ। तो अगर हम इसका पहले नाम देखेंगे 1 2 3 4, इट इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अगर आप इसको भी रिएक्शन करोगे विथ KOH अल्कोहलिक ऑन हीटिंग, देखिए आप, ये तो है दिस Br इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो इट्स अल्फा, अल्फा के बाद यहाँ से बीटा, तो ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरह से इसके जो डायरेक्ट इस साइड में अटैच है कार्बन, दैट्स आल्सो बीटा। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन हियर। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो 2 किस्म के हैं, 2 किस्म के बीटा हाइड्रोजन हैं यहाँ पे। अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आ जाएगा। हम दोनों लिखेंगे पहले। अगर हम ये वाला निकालेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से हमें मिल जाएगा CH3CH। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये Br, ये हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3। या अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड इस साइड से आ जाएगा, तो इस तरह से CH, मतलब ये अगर यहाँ से H निकलेगा, Br यहाँ से, H यहाँ से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे दो किस्म के प्रोडक्ट्स बनने की चांस है। तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, दैट्स कॉल्ड सेट-जिफस रूल। तो सेट-जिफस रूल क्या है? अगर कहीं पे हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से 2 किस्म के अल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है दैट वुड बी द प्रेडोमिनेंट प्रोडक्ट। मीन्स अगर आप इस तरह से देखोगे,
अगर आप इस ईथीन, आप समझो ये ईथीन है, ये ईथीन है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस H के बदले आपने यहाँ पे CH3 लिया है। इट मीन्स एक तो सब्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पे। तो आप समझो ये भी था जैसे कि CH2, इसमें से एक H आपने रिप्लेस किया है ये, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड ईथीन है। अगर आप ये ले लेंगे, ये आप समझो यहाँ पे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस हिस्से को, ये ईथीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब 2 नहीं, यहाँ पे H है, एक H के बदले ये आया है। तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन हुई है। कौन सा ईथीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? ये वाला ऊपर वाला, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वही प्रेडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा एज पर द सेट-ज़ेफस रूल। दो सेट-ज़ेफस रूल बताता है कि अगर कहीं पे दो तरह के अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे वो अल्कीन ज़्यादा, वो ईथीन ज़्यादा प्रेडोमिनेंट बनेगा, ज़्यादा मिकदार में बनेगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इनमें से हाईली सब्स्टिट्यूटेड ये है, क्योंकि अगर आप इसको, फिर मैं कहूँगा, अगर आप इसको ईथीन मानोगे तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब H के बदले आया है CH3, दैट्स वाई हियर वी हैव ओनली CH। तो एक सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे हुई है, एक सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे, तो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर आप इसको, चूँकि यहाँ पे आप समझो ये ईथीन था, अब यहाँ पे तो CH2 है ही, यहाँ पे आप समझो ये CH2 था, अब H के बदले ये आया है, तो यहाँ पे एक ही H रिप्लेस हुआ है बाय दिस ग्रुप। सो इट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ईथीन एंड इट इज़ डाई सब्स्टिट्यूटेड ईथीन। तो किस प्रोडक्ट में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हुई है? ऊपर वाले में, दैट वुड बी द प्रेडोमिनेंट प्रोडक्ट। तो यही इनफैक्ट इट इज़ मोर स्टेबल और ये प्रेडोमिनेंट होगा। सो इट इज़ ब्यूटुइन, इट इज़ ब्यूटुइन एंड इट इज़ ब्यूट-1-ईन, इट इज़ ब्यूट-1-ईन। तो अगर आप देखेंगे ये प्रेडोमिनेंट होता है, इट इज़ 80% बन जाता है, इट्स ओनली 20%। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी और मिलेगा हमें KBr और H2O। तो जहाँ पे एक ही किस्म का बीटा हाइड्रोजन था, तो वहाँ पे हम इजीली प्रोडक्ट एक ही किस्म का बनता था, क्योंकि ये इस तरह का हेलो अल्केन है कि यहाँ पे दो किस्म के बीटा हाइड्रोजन हैं, दो किस्म के बीटा हाइड्रोजन। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ पे दोनों बीटा हाइड्रोजन की निकलने की पॉसिबिलिटी है। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा जिसकी वजह से हमें डोमिनेंट प्रोडक्ट मिलेगा? वो बीटा हाइड्रोजन होगा जिसकी वजह से हाईली सब्स्टिट्यूटेड ईथीन हमें मिल जाएगा। तो अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकलता था, अगर मैं इसको स्टार के तौर पे यहाँ पे इसको डिनोट करूँ, तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलने से ये वाला प्रोडक्ट बनता था। तो अगर इसको मैं डबल स्टार के तौर पे डिनोट करूं, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलने से ये वाला अल्कीन बनता था। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है? ये। तो इसका मतलब है इस बीटा हाइड्रोजन की निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत इसके, तो ऑटोमेटिकली यही बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से मेन प्रोडक्ट इसी से बन जाएगा। और इसी रूल को हम सेट-ज़ेफस रूल कहते हैं। तो सेट-ज़ेफस रूल क्या है? Whenever two alkenes are theoretically possible during a dehydrogenation reaction, it is always the more highly substituted alkene which predominates. तो यहाँ पे मैं इस रूल को लिखना चाहूँगा, सेट-ज़ेफस रूल।
Saint-Zipf rule. According to this rule, whenever two alkenes are theoretically possible, or theoretically possible during a dehydrohalogenation reaction, it is always the मैं लिखना चाहूँगा, it is always the more highly substituted alkene. It is always the more substituted alkene, that is more substituted alkene हम किसको कहेंगे, that is having lesser number of hydrogen atoms on the double bond, that is having lesser number of hydrogens to the double bonded carbon atoms. Which predominates. मतलब यहाँ पे इस तरह से हाईली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है इसके, एक, ये डबल बॉन्ड कार्बन जो है एक और दो हो गए तीन, तो यहाँ पे कितने हैं इस कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कहाँ पे कम है, यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन है, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वही मिलेगा हमें डोमिनेंट प्रोडक्ट, और वही अल्कीन होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। दैट इज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा फिर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेनेवर टू अल्कीन्स आर theoretically possible during a dehydrohalogenation reaction, it is always the more highly substituted alkene, that is having lesser number of hydrogens to the double bonded carbon atoms, which predominates. तो ये था रिगार्डिंग Saint-Zipf's रूल। एक और तरीका है जिससे हम ये अल्कीन्स बनाते हैं, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। फ्रॉम vicinal dihalides, यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, जो डाइहाइड्रोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं, जहाँ पे दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के
अटैच्ड होते हैं तो उनसे हम अल्केन्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे डे हेलो अल्केन, जो डे हेलो अल्केन होगा उसको हम हीट करते हैं विथ जिंक डस्ट इन मिथनॉल और इथनॉल, तो हमें वहाँ पे अल्कीन मिल जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाई हेलाइड्स ले आते हैं, मगर कौन से डाई हेलाइड्स, विसिनल। विसिनल मतलब ये जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखाऊंगा CH2 यहाँ पे है Br, मतलब यहाँ पे दो हेलोजन होने चाहिए, वो एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड्स। दैट विसिनल डाइहेलाइड्स, इट इज हियर 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है ना। इसको हम हीट करते हैं विथ जिंक डस्ट इन मिथनॉल और इथनॉल, तो जहाँ पे हमें अल्कीन्स मिल जाते हैं। जिंक डस्ट, मिथनॉल और मिथनॉल और इथनॉल को हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। वी हीट these 1,2 डाई alkanes with zinc dust in methanol or ethanol and we get alkenes। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ZnBr से मिलकर बनाता है ZnBr2 प्लस, अगर Br निकल गया तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ ईथीन। ये भी है एक तरीका अल्कीन्स बनाने का। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस जो हमारा ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन था, इसको हमने इथीन में तब्दील किया, इससे हमने क्या निकाले, हेलोजन एटम्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेहेलोजिनेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, जहाँ से आप एक हेलोजन मॉलिक्यूल को ही रिमूव करिए फ्रॉम ए डाइहेलोअल्केन टू फॉर्म एन अल्कीन, दैट इज कॉल्ड डेहेलोजिनेशन। इट इज कॉल्ड डेहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा द प्रोसेस ऑफ removal, the process of removal of a molecule of halogen like Cl2, Br2, etc. from a dihaloalkane, from a dihaloalkane to form an alkene, is called dehalogenation. D means remove, halogenation means halogen remove करना। तो वो प्रोसेस जिसमें आप हेलोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे फ्रॉम डाइहेलोअल्कीन। अगर आप डाइहेलोअल्कीन से हेलोजन मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे अल्कीन बनाने के लिए, देन द प्रोसेस कॉल्ड डेहेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को डेहेलोजिनेशन कहते हैं। एक और तरीका है अल्कीन्स बनाने का, दैट इज फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स पे बनाते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होगा, इनको हम हीट करते हैं विथ मिनरल एसिड लाइक कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 एंड फिर क्या हम करते हैं,
और इसको हम हीट करते हैं अबाउट 623 टू 633 केल्विन, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होता है, जिसकी वजह से हमें अल्कीन्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो रिएक्शन इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इट्स लाइक दिस CH3 CH2, it is OH, it is ethanol, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we use these acidic we use mineral acids like H2SO4, यहाँ पे 95% H2SO4, और हम यहाँ पे हीट भी करते हैं इसको अबाउट 433 to 433 केल्विन टू 443 केल्विन। तो वहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, ये OH और ये H निकलेगा, तो ये बन जाएगा वाटर प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ इथीन। इस तरह से हमें इथीन मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, एक और तरीका है, अगर आप इस इथेनॉल के वेपर्स को पास करोगे ओवर हीटेड एल्यूमिना, अगर आप इनके वेपर्स को पास करोगे ओवर हीटेड एल्यूमिना एट 623 टू 633 केल्विन, जो इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने इससे पहले जो टेम्परेचर यहाँ पे कहा था वो मैंने कहा था 623 टू 633, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ 433 केल्विन टू 443 केल्विन। अगर आप मिनरल एसिड लेते हैं, अगर आप इनके वेपर्स को पास कर रहे हैं ओवर हीटेड एल्यूमिना, तो उस वक्त जो टेम्परेचर वहाँ पे ज़रूरत होता है दैट इज़ 623 टू 633। Al2O3, if these vapors are passed over heated alumina at 623 to 633 केल्विन, तो वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ इथीन। दोनों तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कीन बनाने के। तो अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपने वाटर को रिमूव किया है बाय यूजिंग एसिड, तो इफ़ वी रिमूव मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल बाय यूजिंग एसिड, then this reaction is also called acidic dehydration। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे acidic dehydration, बिकॉज हमने वाटर को रिमूव किया है बाय यूजिंग एसिड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो यह है कि हम कैसे अल्कीन्स बनाते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर भी हम सेट-जिफस रूल इस्तेमाल कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स की तरह। अगर हमारे पास, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये इनफैक्ट इट इज़ अल्फ़ा कार्बन, जिसको OH अटैच होगा इट इज़ बीटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है, तो ये हाइड्रोजन ये OH, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। मगर अगर हम ये वाला अल्कोहल ले लेंगे, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा CH3 CH2
CH CH3. It is butane 2-ol, butane 2-ol. यहाँ पे अल्फ़ा, इट इज़ बीटा, इट इज़ ऑल्सो बीटा. तो अब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है. अब कौन सा concentrated H2SO4 on heating, when we heat this alcohol in the presence of concentrated H2SO4, what happens, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है. अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के लिए यहाँ तो OH तो निकलेगा, मगर H निकलने के H जो है वो इस बीटा हाइड्रोजन से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा. अब कौन ज़्यादा निकलेगा, मेरे कहने का मतलब कहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिससे हमें हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा, वही प्रोडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा यहाँ पे. तो अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे जो अल्कीन मिल जाएगा इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इट इज़ ब्यूटूइन. तो अगर ये वाला H निकलेगा तो इस तरह से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ ब्यूट-1-इन. अगर आप यहाँ पे देखें इट इज़ हाईली सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके पास 2 ही हाइड्रोजन है. यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है. जहाँ पे कम होंगे इसका मतलब वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, बिकॉज इसकी एक सब्स्टिट्यूशन ये है, 1 सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा इट इज़ डाई सब्स्टिट्यूटेड, इट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा, ये. इनफैक्ट इट इज़ अगेन 80% और ये है 20%. और यहाँ से हमें मिल जाए क्या रिमूव होगा, वाटर. तो यहाँ पर भी हम सैंट-जेबस रूल इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन द डोमिनेंट प्रोडक्ट यहाँ पे कौन मिल जाएगा हमें. ये जो इनफैक्ट एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पे बताना चाहेंगे. मैकेनिज्म ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ये एक ही स्टेप में नहीं होती हैं. इनफैक्ट इट ऑकर्स इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स. और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि वो स्टेप्स जिनके ज़रिए ये रिएक्शन होती हैं उनको जानना चाहेंगे, दैट मीन्स यू आर नोइंग इट्स मैकेनिज्म. तो हम सिंपली रिएक्शन मैकेनिज्म को इस तरह से डिफाइन भी करते हैं, ए नॉलेज ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेप्स बाय विच द रिएक्शन ऑकर्स इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो जो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, इट इज़ बिलीव्ड टू ऑकर बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स occur by the following 3 steps. तो पहला स्टेप को क्या होता है कि चूँकि जो अल्कोहल है इनफैक्ट इट इज़ लीविस बेस, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं. तो ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड और वहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाता है. तो पहले जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एन अल्कोहल बीइंग ए Lewis base accepts a proton and form
प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज, यहाँ पे चूँकि हम अल्कोहल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं H2SO4, इस तरह से ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव, फिर इसके साथ अगर हम इथेनॉल यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें मिल जाएगा लाइक दिस, इट इज CH3CH2OH2, H और H2 पॉजिटिव, इट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्योंकि हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटोनेटेड इथेनॉल, एंड दिस स्टेप इज यूजुअली रिवर्सिबल। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप है तो वो क्या है, जो स्टेप सेकंड यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे जो हमें इस तरह से दिखाऊंगा CH3CH2O, मैं इस तरह से इसको दिखाना चाहूँगा, पॉजिटिव चार्ज है, जो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, दिस ऑक्सीजन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये O और C के दरमियान जो ये बॉन्ड है ये वीक होगा, तो जिसकी वजह से वहाँ से रेडीली बड़ी आसानी के साथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलकर वहाँ पे हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा। इस तरह से ड्यू टू द presence of positive charge on this oxygen, this carbon oxygen bond gets weakened. As a result, the bond breaks like this and it comes out as water. यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस जानिब आ जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी, इस तरह से CH3CH2 पॉजिटिव, और जब भी किसी भी केमिकल स्पीशीज़ में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, एंड इट इज़ आल्सो कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो इथाइल कार्बोकैटायन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन हमें मिलेगा, इनफैक्ट इट इज़ स्लो स्टेप। तो आप यहाँ पे जो स्टेप सेकंड है, तो इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये O और C के दरमियान जो बॉन्ड है वीक होगा, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगी, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव, दैट इज़ कार्बोकैटायन, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज़ इथाइल कार्बोकैटायन, और यहाँ पे वाटर रिमूव होगा। तो अब जो लास्ट स्टेप है इसका, तो वो है जो कार्बोकैटायन हमें यहाँ पे मिल जाता है, दैट विल लूज अ प्रोटॉन एंड फॉर्म एन अल्कीन। स्टेप थर्ड, अगर मैं इस तरह से ये दिखाऊंगा, इट्स लाइक दिस CH2, इनफैक्ट इट इज CH3CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं H दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं H दिखा रहा हूँ, तो ये जो कार्बोकैटायन है इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स इनफैक्ट फास्ट रिएक्शन, इट इज़ इनफैक्ट फास्ट रिएक्शन, it is in fact a fast reaction, it is in fact fast reaction। यहाँ पे क्या होगा, H रिमूव होगा एज H पॉजिटिव, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस जानिब आकर डबल बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और H होगा रिमूव एज H पॉजिटिव, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे ईथीन, या हम जनरल में अल्कीन कहेंगे। और जो ये स्टेप है इट इज़ फर्स्ट स्टेप,
और जो सेकंड वाला स्टेप है इट इज़ स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप ये वाला सेकंड स्टेप है इट इज़ इन फैक्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज स्लो स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है एक complex reaction में, slowest step is a rate determining step. So here this step is rate determining step. तो ये था किस तरह से अल्केन्स हमें मिल जाते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके ज़रिए हम अल्केन्स बनाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम सोडियम और potassium salts of saturated dicarboxylic acids, in fact this reaction is also called Kolb's electrolytic reaction. It is called Kolb's electrolytic reaction. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हम एक इस तरह से CH2CO की it is potassium succinate, it is potassium succinate। हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एक तो इस तरह से बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये K2OH 2 टाइम्स KOH और H2 निकलता है यहाँ पे। अगर आप बैलेंस करेंगे इसको तो इस तरह से, और ये हमें मिल जाएगा ईथीन। तो अगर हम थोड़ा इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे तो इनफैक्ट क्या होता है, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पहले ये आयोनाइज सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा लाइक दिस COK CH2COK। तो आयोनाइज होने से क्या होगा, आयोनाइजेशन हमें आयन्स मिल जाएंगे इसके, ये इस तरह से K यहाँ से अलग होगा, यहाँ से K अलग, तो इस तरह से CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स K पॉजिटिव। और इसी तरह से वाटर भी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर वाटर भी है, इसकी आयोनाइजेशन भी होगी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो अब जो आप समझो, जब हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड्स 2 इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हम, एक तो है नेगेटिव दैट इज़ कैथोड और एक है पॉजिटिव दैट इज़ एनोड। एक एनोड इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पे हमने पोटेशियम सक्सिनेट लिया है उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम सक्सिनेट इसमें आयोनाइज होके इस तरह से होगा, वाटर भी कुछ इस हालत में होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये पॉजिटिव है एनोड, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयन्स जाएंगे
नेगेटिव आयन्स और ये है, तो इन दो आयन्स में होगी, तो जो रिएक्शन होगी एट एनोड, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगी। अब क्या ऑक्सीडेशन OH की होगी या इसकी, दैट डिपेंड्स कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा या किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन होने की, और इन दो में से इसी की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये आएगा वहाँ CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे, ये बन जाएगा CH2CO इलेक्ट्रॉन लॉस करके दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो ये इनफैक्ट ये होगा CH2, इसको मैं ऐसे लिखूँगा इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ये रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है बाहर। इसी तरह से CH2CO, ये वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में तब्दील होगा, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और CH2 पे रेडिकल बन जाएगा CH2 रेडिकल। इस तरह से ये भी इस तरह से आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन इसने अपना, इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन है, इस ये वाला रेडिकल CH2 रेडिकल, यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूँगा ये अभी CH2 बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये यहाँ पे मिला हमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, यहीं पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए एक तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इस कार्बन का बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ है वो बॉन्ड ब्रेक होकर वो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेकर इस तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल। तो इसी तरह से ये भी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इस जानिब आ जाएंगे, तो ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड बना के तो यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स 2। अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमें इथीन मिल जाएगा। तो ये होगी एनोड पर। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड, कैथोड की जो चार्ज होती है, अगर आप देखिए कैथोड की चार्ज है नेगेटिव, इसकी जानिब पॉजिटिव आयन्स आ जाएंगे। पॉजिटिव आयन अगर आप देखेंगे, पॉजिटिव आयन कौन कौन सा हमें, जो नेगेटिव, एक तो है H पॉजिटिव, या तो ये आ सकता है, और एक K पॉजिटिव। अब चूँकि जो कैथोड है उसकी जानिब ये दो जाएंगे, अब इन दो में से किसकी रिएक्शन होगी वो डिपेंड करता है किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव की ही कम है। तो चूँकि एक और बात, कैथोड इस तरह जिस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड और ऑक्सीडेशन बोथ स्टार्ट विद द वॉवेल साउंड, ए एनोड का ए, ऑक्सीडेशन का O, इस तरह से आप याद रखोगे। इसी तरह से कैथोड पर रिडक्शन होती है, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होती है। कैथोड भी उसका कॉन्सोनेंट साउंड है, रिडक्शन का भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इस तरह से आप याद रखोगे। तो कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। कैथोड की क्या चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएंगे, पॉजिटिव वाले, तो ये पॉजिटिव वाले हैं। अब इनमें से किसकी रिएक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, H पॉजिटिव का, तो इसी की रिएक्शन होगी वहाँ पे। तो जो H पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये तब्दील हो जाएगा H में। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो डिपेंड करता है, जितने एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन होंगी। तो एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2। तो यहाँ पे मतलब देखें एट एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हुई ना, उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए फिर 2H पॉजिटिव होने चाहिए, तो वो तब्दील हो जाएंगे 2H में। ये एज H नहीं रहते हैं, ये 2H इस तरह से रहते हैं H2, और इस तरह से आपको कैथोड के पास से हाइड्रोजन गैस वहाँ पे लिबरेट होगा
और इस तरह से हाइड्रोजन गैस। और अगर आपको थोड़ा याद रहेगा यहाँ पे, चूँकि अब के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में से एच पॉजिटिव की रिएक्शन हुई थी, तो वहाँ पे के पॉजिटिव वहीं पे बचा, के पॉजिटिव अब सोल्यूशन में ही है। और नेगेटिव आयन जो ये थे CH2CO नेगेटिव और OH नेगेटिव, इनमें से ये बचा सोल्यूशन में, के पॉजिटिव और OH एक दूसरे के साथ मिलकर KOH बनाएंगे। तो दैट इज़ वाई वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो KOH, जो आप यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। तो जब आप इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, आपको एक तो इथीन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे मिलता है, और KOH जो मैंने कहा कि सोल्यूशन में के पॉजिटिव और OH वहीं पे रहेगा, तो वो KOH बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा। तो ये था कोलबर्ज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, और ये थे कुछ मेथड्स जिनके ज़रिए हम अल्कीन्स बनाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।